थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद है तेरे। प्रभु जी तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। आज की सुबह तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। बहुत सारे हैं जो सो गए और इस दिन को नहीं देख पाए, मगर तूने हमने जीवितों के समान बीच में रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते इस समय तेरे लोगों के लिए जो भूखे प्यासे आए हैं, तेरे वचन से तृप्त कर प्रभु जी। प्रभु जी हमारी मदद और सहायता कर पवित्र आत्मा, कि हम मिलकर तेरे नाम की स्तुति करने पाए, स्तुति का सिंहासन बनाने पाए प्रभु जी, और वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। प्रभु जी हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है, यदि कोई भी बात जो तुझे नहीं भाता है तो उसे तू हमारे जीवन से निकाल, कि हम पवित्र होकर शुद्ध मन से तेरे नाम की स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी लोग अपने वेदनाओं को, अपने प्रार्थना के निवेदनों को लेकर तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को छू प्रभु जी, उनके मनों से, उनके दिल से बात कर प्रभु जी। कोई बीमार है तो उसे छू और चंगाई दे प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते हैं कि तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु जी, और उस चंगाई को हम ग्रहण करते हैं अपने लिए और जो बीमार है उनके लिए प्रभु जी, उनका बिहाफ में प्रभु जी। प्रभु जी एक अद्भुत काम की जरूरत है और तू करेगा, इसका विश्वास है हमें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हमारी मदद और सहायता कर, तू अपने इच्छा अनुसार इस जगह में चल फिर और अपनी महिमा हमारे द्वारा हमसे ले प्रभु जी। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से चाहते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थान में खड़े हो जाए और कुछ स्तुति के गीतों को गाएं उस जीवित परमेश्वर के लिए। Oh, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Oh, we were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can and testify
that His love is everlasting and His mercy never end. God is good all the time. In this heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand. To the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. To the song of praise in this heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Let's get the second verse. We were sinners and so unworthy, still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we stand and testify that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand, though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand. To the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. Oh, God is good all the time. He's good, a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. He's so good all the time. क्यों ना जोरदार ताली बजाएं और कहें परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर तू अच्छा है, परमेश्वर तेरी करुणा महान है। परमेश्वर ताली बजाकर जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने,
आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ला 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 घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने, घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। एक साथ कहें जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ला 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 ला। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। धन्यवाद करते परमेश्वर, कुछ क्षण लेकर परमेश्वर तेरी जय हो। हमारे पापों से तूने हमें बचाया। जो सामर्थ तेरे पास 2000 साल पहले थी, जब तू इस पृथ्वी पर चला, वो सामर्थ आज भी वैसी ही है परमेश्वर। तूने जिस सामर्थ से कोड़ी को शुद्ध किया, जिस सामर्थ के द्वारा तूने अंधों की आंखों को खोला, हम मांगते तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, कोड़े खाते क्रूस उठाकर यीशु मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, कोड़े खाते क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, पत्थरों और सब मुसीबतों से, आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार
ओ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। ओ तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। ओ सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा वरदान। ओ सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ, ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus.
worship you, God. King of kings, Lord of lords, ruler of the earth and the heavens. We worship you, God. Holy, holy, holy are you, God. Holy, holy, pavitra, pavitra, pavitra Parmeshwar tu. बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र प्रभु, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस पवित्र समय के लिए, इस अद्भुत और बहुमूल्य समय के लिए प्रभु, जहाँ पर हम कलीसिया हैं प्रभु और हमने आपको महिमा दी है पिता। धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए जिस नाम में हमें बचाया है, छुड़ाया है, अनंत जीवन दिया है पिता। हम आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते, पूरी सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते। प्रार्थना है पिता, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक से बोल और बातचीत करना। जब तेरे दास खड़े होते हैं प्रभु, उन्हें आत्मा से मस्सा कर प्रभु, और उनके मुख से होकर तेरा अमृत वचन हमारे जीवन में पिता घर करने पाए। प्रत्येक को आशीष दी यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार
उसका 4 अध्याय उसका 27, 28 और 29 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें, पर वह उनके बीच से निकल करके चला गया। यदि आप इस पूरे 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक वर्णन को पाएंगे जो यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर के निकला, 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के पश्चात वो परमेश्वर के भवन में गया। सबत के दिन अर्थात आराधनालय के दिन, जो दिन परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए ठहराया था कि वे सबत के दिन आराधनालय में जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। और बाइबल इस बात को बोलती है कि बचपन से ही यीशु मसीह के माता पिता उसको इस बात को सिखाते रहे कि हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और आप बार बार यीशु मसीह के विषय में पाओगे कि क्या ये यूसुफ बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या इसके भाई याकूब ये सब हमारे साथ खेलते नहीं हैं? क्या इसकी माता मरियम नहीं है जो बिन ब्याही एक बच्चे को जन्म दिए? बहुत सारी घटनाएं थी। लेकिन मैं आज की सुबह जो परमेश्वर ने मुझे विचार दिया है, डोंट टेक गॉड प्रेजेंस एंड गॉड्स हाउस इन ग्रांटेड। मैं जो आज पे बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो विषय है वो ये है, परमेश्वर के घर और उसकी उपस्थिति को हम किसी भी रीति से हल्के में ना लें, किसी भी रीति से। और जब मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आपको बोलूँ, मैं अपने आप पे इसको लागू करता हूँ कि मैं प्रभु के घर और उसकी उपस्थिति को किसी भी रीति से हल्के में ना लूँ, किसी भी रीति से। क्योंकि एक चीज़ तय है, परमेश्वर कुछ चीज़ों के विषय में बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये बात अलग है, हम विलाप गीत में पढ़ते हैं, परमेश्वर अति विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और दयालु परमेश्वर है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, परमेश्वर अपने नाम की नाम धराई और उसके घर का अनादर किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो कोई क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर उसके घर की और उसके नाम की नाम धराई और बदनामी पसंद नहीं करता है। आज जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, मैं ये बोलने वाला हूँ कि हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हम में से हर एक जानते हैं हु इज़ गॉड, परमेश्वर कौन है, वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। और बिना उसके अनुग्रह के आप और मैं जो श्वास ले रहे हैं ना, एक पल ये श्वास को भी नहीं ले सकते बिना उसके अनुग्रह के। मुझे अच्छे से याद है, मैं कई बार जब इस घटना को याद करता हूँ मेरे आंख से आंसू गिरता है। जब मुझे कोविड हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सांस लेने में, बात करने में मुझे इतनी कठिनाई हो रही थी, इतनी कठिनाई हो रही थी। और मैं आज के दिन को याद करता हूँ, मैं इस बात को पता हूँ, प्रभु अति करुणामय और विश्वासयोग्य है। कई बार हम परमेश्वर के किए गए उस उपकार को भूल जाते हैं। और कई बार आप और मैं परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है। आप सब अपने को प्रभु ने आप घर दिया है, थैंक गॉड। आप सब अपने घर पे रहते हैं, है ना। आपके बेडरूम पे, आपके हॉल पे यदि कोई कचरा दिखेगा, आप क्या करते हो? कोई गेस्ट आ रहा है, आप चाहोगे आपका घर सबसे बेहतर उस दिन दिखे, सबसे बेहतर।
आप नया अच्छा बेडशीट बिछाओगे, अच्छा सोफ़ा कवर बिछाओगे, पूरे घर की सफाई करोगे, जो काम वाली आएगी उसको बोलोगे आप अच्छे से झाड़ू मार। आप अपने घर के लिए हम इतना चिंतित हैं, व्हाट अबाउट गॉड्स हाउस? प्रभु के घर के लिए हमारे मन की इच्छा क्या है? देखिए बाइबल इस बात को बोलती है, यीशु मसीह ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। मित्रों, जब आप और मैं प्रभु के घर में आते हैं, सबसे पहली आपकी मेरी प्राथमिकता ये है, इस बात को हम एक्नॉलेज करें, वेयर वी आर गोइंग एंड फॉर व्हाट वी आर गोइंग। हम कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद से हम जा रहे हैं। कई बार आपको और मुझको लगता होगा कि अरे यूं ही है, संडे है, चले जाएं। अभी हम लोग इस साल ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं बाइबल कॉलेज, तो कुछ मैं अपने बच्चों को सताता हूँ, मजाक करता हूँ। तो एक लड़का है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए आपके, मतलब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन मुझे हुए। कई बार ये हमारा एटीट्यूड होता है गॉड के घर के लिए। कई बार मित्रों, जब आप और मैं रविवार के प्रभु के भवन में आ रहे हैं, इस बात को हम किसी भी रीति से हल्के में ना लें। पहला चीज़, प्रभु का भवन को हल्के में ना लें। दूसरा चीज़, प्रभु की उपस्थिति को हम हल्के में ना लें। मैं आज जो पहला चीज़ आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि प्रभु के भवन को हम हल्के में ना लें। आप सब जानते हैं मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय, जब यीशु मसीह के विषय में लिखा है, 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम में विजय के साथ में प्रवेश किया, एक राजा के समान प्रवेश किया। लेकिन जब हम 21 अध्याय पढ़ते हैं, लिखा है जब यीशु मसीह आराधनालय में आया, बाइबल इस बात को बोलती है कि यीशु मसीह उस मंदिर में व्यापार करने वालों के मेज़ों को उलट दिया, उनके कबूतरों के सर्राफों को उलट दिया। आप सोच सकते हो, क्या इतना सभ्य परमेश्वर, इतना सभ्य परमेश्वर क्या ऐसे कामों को कर सकता है? देखिए, परमेश्वर जो है ना, इब्रानियों का लेखक बोलता है, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना समझ। यदि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है तो तुझे ताड़ना भी देगा। कई बार परमेश्वर हमको परिस्थिति में डालता है कि हम उस परिस्थिति से समझ जाएं, सीख जाएं कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, उसने उनकी मेज़ों को उलट दिया, उनकी चौकियों को पलट दिया, उनको कोड़े लगाया। क्या आप सोच सकते हैं परमेश्वर कोई काम शोभा देगा? लेकिन आपको मालूम है, बाइबल इस बात को बोलती है, जब परमेश्वर ने उनकी चौकियों को उलट दिया, उनके सर्राफों को, तख्तों को पलट दिया, कोड़े लगाया, सबको बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ एक खूबसूरत आयत है, लिखा है जितने उस मंदिर में थे, लंगड़े लूले, हर एक को यीशु मसीह ने चंगा किया, हर एक को। क्यों परमेश्वर अपने मंदिर में जा करके इस प्रकार के कार्य को कर रहा है? आपको मालूम है, यदि आप इसका पूरा इतिहास उठा करके पढ़ोगे, परमेश्वर ही था जिसने मूसा को बोला था, मूसा तुम मेरे लिए एक मिलाप वाले तंबू को बनाओ, मिलाप वाले तंबू को बनाओ। परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिन में बादल और रात में आग के खंभे के रूप में इजरायलियों को दिया। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मनुष्य के साथ में डेरा करे। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य के साथ वो अपनी उपस्थिति को बना करके रखे। इसीलिए यशायाह 7 उसके 14 में लिखा है, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ। और जब यहाँ पर यीशु मसीह आया, बाइबल और इतिहास बताती है, आप बाइबल के इतिहास को पढ़िए, हिस्ट्री कमेंट्री पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये जो मंदिर था ना, ये मंदिर का उद्देश्य क्या था मालूम है आपको? लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, मूसा मिलाप वाला तंबू बना जहाँ मैं तुम लोग के बीच में वास करूँ। लेकिन जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया, सुलेमान ने बड़ी
आदर और सम्मान के साथ उस मंदिर का समर्पण किया। लेकिन जब यीशु मसीह का समय आया, मैं इतिहास को पढ़ रहा था, चूँकि मैं नया नियम पढ़ाता हूँ बाइबल कॉलेज के बच्चों को, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ वहाँ से पढ़ता हूँ। एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हुई थी, क्या हुआ था मालूम है? यहाँ पर सिर्फ व्यापार कर रहे थे वो बात नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आए थे यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए, और वो अलग अलग अपने अपने देश का दिनार या पैसे को लेकर के आए थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं और ऐसे चीज़ों का छाप बना हुआ था। वे छाप के उस मुद्रा को उस मंदिर में लेन देन कर रहे थे। उस मुद्राओं का लेन देन उस मंदिर में कर रहे थे। ये बात किस चीज को दर्शा रहा है? परमेश्वर जो है वो पवित्र है। परमेश्वर अपने भवन में अपवित्रता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने घर में अपवित्रता को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर घटना घट रही थी, उस मंदिर की अपनी एक पवित्रता थी, उस मंदिर की अपनी एक शोभा थी। परमेश्वर की महिमा उसी मंदिर में, वो एक अति पवित्र स्थान था जहाँ पर महायाजक साल में केवल एक बार जाता था। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी लोग थे, महायाजक, शास्त्री, फरीसी लोग, इन लोगों ने क्या किया आपको मालूम है? लोगों के साथ में मिल करके कायदे से जो भेड़ और बकरियां लेकर के आनी थी, वो या तो उनको अपना पाला हुआ लेकर के आना था, और जो लेकर के भी आना था वो ऐसे भेड़ बकरियों को लेकर के आना था जिसमें कोई दाग, कोई धब्बा ना हो, कोई लंगड़ा, लूला, काना, अंधा ना हो। लेकिन जो महायाजक और याजक लोग थे ना, उन्होंने इन व्यापारियों से एक साठ गांठ किया। यदि मार्केट में 1000 का मिलता है एक मेमना, तो तुम यहाँ 1500 में बेचना। तो जो 500 है उसका प्रॉफिट आधा आधा हम आपस में बांटेंगे। मतलब दूसरी चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है, डोंट मेक गॉड्स हाउस अ बिजनेस हाउस। परमेश्वर के घर को व्यापार का केंद्र मत बनाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, जब पहली बार यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया, लिखा है वो आराधनालय में गया और उसने कहा मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन अपने सेवकाई के अंतिम समय में 3 वर्ष के समय में, 3 वर्ष के अंतराल में, आप सोचिए ये मंदिर डाकुओं की खो बन गई थी। यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना लिए हो। तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना लिए। आप सोचिए भ्रष्टाचार कितनी अधिक सीमा में था कि यीशु मसीह को बोलना पड़ा तुमने डाकुओं की खो बना लिए हो। मित्रों, आपकी और मेरी जवाबदारी है, आपकी और मेरी जवाबदारी है कि हम परमेश्वर के भवन का अपने हृदय से सम्मान करें। हम परमेश्वर के भवन को हल्के में नहीं ले सकते। एक बात तय है, एक बात तय है, कई बार आप और मैं सोचते हैं कि हमारे बच्चे सीख जाएंगे। आपके बच्चे सीख जाएंगे, नो डाउट। आपके बच्चे किससे सीखेंगे मालूम है? आपको देख करके। आप यदि अपने बच्चों के सामने प्रभु के घर का आदर करोगे, आपके बच्चे प्रभु के घर का आदर करेंगे। यदि आप अपने बच्चों के सामने प्रभु के घर का निरादर करोगे, आपके बच्चे प्रभु के घर का निरादर करेंगे। मित्रों, हम चाहते हैं अपने बच्चों को सिखाना। हम अपने बच्चों के सामने कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कैसा? जो हम बोएंगे उसी की कटनी हम काटेंगे।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मंदिर में हो रहा था, उस पवित्र स्थान की जो गरिमा थी ना, वो गरिमा को लोगों ने प्रदूषित करने का प्रयत्न किया। देखिए, मैंने पहले कहा परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर के नाम के योग्य जो महिमा है, प्रभु अपने बड़े से बड़े दास को भी नहीं देता। परमेश्वर की जो महिमा है वो केवल और केवल परमेश्वर लेता है। लेकिन कई बार हम लोग परमेश्वर की महिमा को किसी नासवान चीज में बदल देते हैं, जिसको पौलुस रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय में लिखते हुए बोलता है कि तुमने उस अदृश्य और अलौकिक परमेश्वर की महिमा को इस नासमान वस्तुओं से क्या किया, बदल दिया। परमेश्वर ने उन्हें उनके नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। मित्रों, आप और मैं परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हमारा आचरण क्या होता है जब आप और मैं परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्या इस बात को हम जानते हुए आ रहे हैं कि हम राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के सामने जा रहे हैं? हम राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के सामने जा रहे हैं, या हम यूं ही चले जा रहे हैं? पहले मैं बहुत डरता था किसी अधिकारी के पास जाने के लिए। मैं 4 बार सोचता था कि मैं जाऊंगा तो कहीं ये मुझे भगा मत दे, और वास्तव में एक बार ऐसा हुआ भी। वास्तव में हुआ क्या था, मैं और हनी भैया एसडीएम के पास गए थे। तो एसडीएम इतना दिखने में मतलब लग रहा था कुछ है ही आदमी खतरनाक टाइप का। जस्ट गेट आउट। हम लोग बाहर निकल गए। हनी मेरे को बोलता है कैसे यार भैया ये? मैं बोला अरे यार ये एसडीएम है। उस दिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा ये एसडीएम है, तू कौन है? तू मेरा बेटा है, घुस जा अंदर। घुस गए हम लोग अंदर। हम बोला सर आप इसका बिल जमानत कैसे नहीं दोगे? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम एक प्रशासनिक अधिकारी से जो आज है और कल चला जाएगा, उससे हम इतना डर रहे हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के प्रति हमारे मन में कितना आदर और श्रद्धा है। जिस दिन आप और मैं इस बात को एक्नॉलेज करेंगे ना अपने घर से निकलते समय कि मैं किसी व्यक्ति से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं राजाओं के राजा की उपासना करने जा रहा हूँ, मैं राजाओं के राजा की उपासना करने जा रहा हूँ। मित्रों, कई बार जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, दूसरी बात आपको मालूम है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ोगे, मैं आपसे बाइबल इसलिए नहीं खुलवा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मुझे खुद पढ़ने में दिक्कत होती है थोड़ा से, लेकिन हम सब बाइबल पढ़े, हमको मालूम है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में परमेश्वर ही वो व्यक्ति था जिसने इस बात को स्थापित किया था कि मुझे आदम और हवा से बात करना है। आदम और हवा के विषय में वहाँ पर नहीं लिखा है, आप अपनी बाइबल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आदम और हवा के विषय में नहीं लिखा है कि वे परमेश्वर के पास गए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनके पास उतर आया, परमेश्वर उनके पास में उतर आया उनसे बात करने। और जब परमेश्वर बात करने के लिए आया ना, बाइबल बताती है आदम और हवा उसके सामने नहीं आए, वे छुप गए। परमेश्वर को पुकारना पड़ा, आदम आदम तू कहाँ है? मित्रों, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं रविवार के, हम अपने हृदय में क्या लेकर के आते हैं? क्या कि आज मैं जा रहा हूँ प्रभु के तमाम उपकारों के लिए मुंह खोल के उसका धन्यवाद करूँगा। बाइबल बताती है अपने पवित्र हाथों को उठा करके प्रभु का धन्यवाद करो, अपने होठों का बलिदान उसे चढ़ाओ। 1 शमूएल 15 अध्याय उसका 21 और 22 वचन में लिखा है परमेश्वर ना तो तेरे मेल बलि से न तेरे होम बलि से प्रसन्न होता है, परमेश्वर तो अपनी आज्ञा के पालन करने से प्रसन्न होता है। और यूहन्ना 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मित्रों, हम परमेश्वर के भवन में आए,
आप अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूँ, आज मैंने क्या बेस्ट परमेश्वर को दिया? क्या बेस्ट मैंने परमेश्वर को दिया? यदि आप और मैं प्रभु के भवन में भी आ रहे हैं और प्रभु से हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा है, हम प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। गलत परमेश्वर के साथ नहीं है, गलत आपके और मेरे साथ है। गलत आपके और मेरे साथ है। कौन सी चीज है जो हमें बांध करके रखती है? आप देखें, जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, आप में से अधिकांश लोग देखें, दुष्ट आत्मा एक समय में ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे हुए टाइप का हो जाता है। जब उसको बोलते हैं ना, यीशु मसीह के लहू से तुझे जलाते हैं, यीशु मसीह के नाम से अगर निकल, और अपने नाक कान को बंद करता है और सुनना नहीं चाहता है। फॉर वॉट वी आर कमिंग इन द हाउस ऑफ गॉड? टू गिव हिम ऑनर, वर्शिप हिम, और टू मीट समबडी एल्स? हम परमेश्वर के भवन में किस लिए आ रहे हैं? परमेश्वर को आराधना देने या एक सोशल गैदरिंग करने? ये हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है प्रभु के भवन में आने का? मुझे माफ़ करना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर कुछ लोगों ने अपना हैबिट बना लिया। वे रविवार के आते ज़रूर हैं। कई बार जब मैं बाहर रहता हूँ या निकलता हूँ बाहर, चेयर्स बहुत सारे चेयर्स रहते हैं, उसके बावजूद वो या तो रामू के चबूतरे के सामने बैठेंगे, या झाड़ के नीचे बैठेंगे, या चार लोग खड़े होकर बात करेंगे। मुझे दुख है इस बात को कहते हुए, लेकिन एक चीज़ हमको तय करना पड़ेगा कि हम प्रभु के भवन में क्यों आ रहे हैं। क्या प्रभु की आराधना करने आ रहे हैं या अपना अटेंडेंस देने आ रहे हैं? क्योंकि जब हम वहाँ खड़े हैं ना, बच्चे हमको देख रहे हैं, और ये बच्चे कहीं बाहर से नहीं सीखेंगे, जो देख रहे हैं वही सीखेंगे। हम इन बच्चों के लिए कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हमारा अभिप्राय क्या है प्रभु के भवन में आने का? हम किस लिए आ रहे हैं? उसके बाद में आप देखोगे, कई बार हम परमेश्वर के भवन में इस बात को जानते हुए आते हैं, प्रभु तू जो है वो तो है, लेकिन मैं जो हूँ ना, वो मैं कुछ और हूँ। आपको मालूम है, उज्जिया राजा था इज़राइल का। परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया था, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, वो जो अति पवित्र स्थान है जहाँ पर वाचा का संदूक था, वहाँ पर राजा को जाने का कोई अधिकार नहीं था। याजक भी या महायाजक भी वहाँ पर हर समय, किसी भी समय में जा नहीं सकता था। एक है कम से कम जो मेरे साथ है। लेकिन उज्जिया बोलता है, बाइबल बताती है, जब उज्जिया राजा बना, उज्जिया उस अति पवित्र स्थान तक का चला गया, अति पवित्र स्थान तक जहाँ उसको जाना उचित नहीं था। आप लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़िएगा। यूहन्ना के पिताजी जकरिया के बारे में लिखा है, जकरिया अपनी दल की बारी के अनुसार जब उसका नाम निकला, अति पवित्र स्थान में गया। जब आप व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, महायाजक साल में केवल एक बार उस अति पवित्र स्थान में जाता था अपने लोगों के लिए बलिदान को चढ़ाने के लिए। और जब वो जाता था ना, तो जाने से पहले कुछ इतिहासकार बोलते हैं, जो याजक जाते थे ना, वे जाने से पहले कुछ दिन अपने आप को अलग रखते थे, अपने आप को जांचते थे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते थे, ताकि वो प्रभु के उपस्थिति में जा रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज़ था, जो भी महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाता था ना, उसके वस्त्र के नीचे में झालर लगे हुए थे।
उसके पाँव में एक चांदी का कड़ा रहता था और उस कड़े से रस्सी बाहरी आंगन तक का रहता था, वेदी तक का, बलिदान के स्थान तक का। जब तक याजक जिंदा है उसका ये संकेत था कि उसके घुंघरू के वस्त्र आते थे। यदि घुंघरू के वस्त्र आने बंद हो गए मतलब याजक के ऊपर परमेश्वर का न्याय उतरा। यदि परमेश्वर अपने महायाजक के लिए नियम कर सकता है तो वो नियम सब के लिए भी है। लेकिन जब उज्जिया राजा था, उज्जिया ने अपने मन में सोचा, मैं राजा हूं, आई कैन डू एनीथिंग, मैं इज़राइल का अधिपति हूं। बाइबल बोलती जब उज्जिया गया परमेश्वर ने उसे वहीं पर कोड़ से मारा। मित्रों, कई बार आप और मैं बड़ा गर्व करते हैं अपने आप पर, अपने पृष्ठभूमि पे, अपने स्टेटस पे, अपने तमाम चीज़ों पे, और हमको लगता है कि हम खेल लेंगे। थैंक गॉड, यदि परमेश्वर का न्याय अब तक का नहीं आया है, प्रभु हमको अनुग्रह दे रहा है। प्रभु हमको अनुग्रह दे रहा है कि आप और मैं सुधर जाएं। जिस दिन आपने और मैंने उस तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया ना, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। यदि परमेश्वर उज्जिया जैसे राजा को नहीं छोड़ा जो उसका चुना हुआ था, तो क्या परमेश्वर आपको मुझको छोड़ सकता है? मैंने पहले कहा, परमेश्वर 2 चीज़ से कभी बर्दाश्त नहीं करता, अपनी महिमा और अपने नाम का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर अपने वचन को महत्व दिया है। कई बार हम लोग सोचते हैं मैं कौन हूँ। आपको मालूम है, मैं यूट्यूब में ना क्रिश्चियन मूवी अधिकांश देखता हूँ, और मैं एक मूवी को जब बार बार देखता हूँ ना, तो मैं अंदर से टूटता हूँ उस मूवी को देख करके। शाऊल, जब शाऊल अमालेकियों को मारने गया, बाइबल बोलती है अमालेकी के राजा आगाग को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को पकड़ करके ले आया। आप शाऊल का वो स्टेटमेंट सुनिएगा, 2 स्टेटमेंट जो वो देता है। बोलता है तेरे लोगों ने तेरे परमेश्वर के लिए, इससे पहले तक का वो परमेश्वर जब अमालेकियों को युद्ध करने गए ना, तो बोले परमेश्वर ने मुझसे कहा है अमालेकियों को नाश करना। अब उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया, बोल रहा है तेरे परमेश्वर ने के लिए, तेरे परमेश्वर के लोगों ने। उस मूवी का एक बहुत अच्छा क्लिप था, जब नातान उसके पास में आता है। हालांकि ये बाइबल में नहीं लिखा है कि शाऊल ने नातान से ऐसा कहा, लेकिन उस मूवी ने को जिसने भी इमेजिन किया, जब नातान बोलता है तूने ऐसा क्यों किया, शाऊल बोलता है क्या तू नहीं जानता मैं इज़राइल का राजा हूँ, मैं इज़राइल का राजा हूँ। उसी तरफ दूसरी एक और मूवी डेविड एंड बत्शेबा, उसके पास में भी नातान आता है और नातान उससे एक घटना बताता है। बोलता है राजा तेरे राज्य में ऐसा धर्म हुआ है। बाइबल बताती है दाऊद क्रोध से भर गया, बोले कौन है बुलाओ, वो निश्चय दंड पाएगा। नातान बोलता है राजा कोई और नहीं, यू आर दैट मैन, तू वो मनुष्य है, तू वो मनुष्य है। बाइबल बताती है दाऊद पश्चाताप करने लगा। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अधिकांश बार हम परमेश्वर के भवन में इस बात को जानते हुए आते हैं मैं कुछ हूं, और इसका परिणाम ये होता है कि हम जैसे आते हैं ना वैसे ही लौट जाते हैं। क्योंकि आपके घर में जो पात्र है ना, वो पात्र तब तक आप उसमें वापस से रिफिल नहीं कर सकते हो जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक वो खाली नहीं होगा। आप सब पानी का बोतल कैरी करते हो, है ना? आप पानी का बोतल में दोबारा भरते हो कि एक बार भर लिए और 1 साल के लिए फुर्सत, ऐसा नहीं। आप अभी चर्च आए हो, पानी का बोतल वो आधा खाली जाएगा, घर जाओगे तो फिर भरोगे। ये चीज़ हम अपने आत्मिक जीवन पे लागू क्यों नहीं कर रहे?
हम परमेश्वर के भवन में आ रहे गर्व के साथ, मैं कुछ हूं। आप और मैं जिस दिन प्रभु के भवन में आएंगे ना, इस बात को जानते हुए, लॉर्ड आई एम, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं बिना तेरे अनुग्रह के, बिना तेरे अनुग्रह के। जैसे बनु भाई ने उस गीत को गाया, शून्य से लेके तूने मुझे। आप इमेजिन करो जब आप प्रभु को नहीं जान रहे थे, और इमेजिन करो आज आप किस स्थिति पे हो। मैं एक चीज को बड़े गर्व से कहता हूं, घमंड करता हूं, यदि 1989 में यीशु मसीह को मैं नहीं जाना होता तो आज आप मुझे नहीं जानते होते। ये केवल प्रभु का अनुग्रह है कि मैंने यीशु मसीह को जाना और आज मेरे बच्चे यीशु मसीह को जान रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। क्या हम उस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें कहाँ से उठाया? कई बार हम उज्जय के समान फूल जाते हैं, उज्जय के समान फूल जाते हैं। तीसरी चीज, जब प्रभु के घर में हम आ रहे हैं, हम प्रभु के घर का अनादर ना करें, प्रभु के घर का अनादर ना करें। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर जो बाबुल का सम्राट था, जब उसने इजरायलियों को बंदी बना करके लेकर के गया, उसके बाद एक समय ऐसा आया जब बेलशस्सर अपने अधिपतियों के साथ में जेवनार करने बैठा। दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में आप इस घटना को पढ़ते हो। जब बेलशस्सर मदिरा के नशे में हो गया तो उसने अपने अधिपतियों से आदेश दिया, जाओ अब मेरे पिता ने जो यरूशलेम से चीज़ों को लेकर के आया था ना, उनको लेकर के आओ, उनको लेकर के आओ, ताकि हमारे जो अतिथि हैं, जो सम्राट हैं, राजा हैं, सारे मंत्री हैं, वो उन यरूशलेम के बहुमूल्य पवित्र पात्रों में मदिरा पान करें। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, बेटर है डू नॉट टच देम। जिसको परमेश्वर ने ठहराया है ना, उसको बेहतर है यदि आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो तो जस्ट कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखो। मैं कठोर शब्दों में बोल रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आप प्रभु के ठहराए हुए चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो, आप उसका उपहास भी मत करो। क्यों मालूम है आपको? चाहे वो व्यक्ति कितना छोटा हो, बाइबल इस बात को बोलती है, तू कौन है जो मेरे दास पर दोष लगाता है? तू कौन है? तू कौन है जो मेरे दास पर दोष लगाता है? हो सकता है आपको व्यक्तिगत वो आदमी पसंद ना हो, दैट इज योर पर्सनल मैटर, लेकिन जब आप प्रभु के घर में हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट गॉड्स मैन। आपको प्रभु के दास का सम्मान करना है, क्योंकि प्रभु ने उसको ठहराया है। और लिखा है जब बेलशस्सर ने बुलाया, बोले जाओ उन पात्रों को लेकर के आओ। आप पाओगे उसी रात परमेश्वर ने लिख दिया, तू तौला गया और हल्का पाया गया। बाइबल इस बात को बोलती है, यदि प्रभु का दास 7 बार भी गिर जाए, प्रभु योग्य है जिसने बुलाया है उसको उठा के खड़ा करने में। आप प्रभु के दास को, मैं कॉमन वे पे बोल रहा हूं, आप प्रभु के दास को किस मन के साथ में स्वीकार करते हो? किस मन के साथ में? आपने उसको नहीं बुलाया, आपने उसको नहीं ठहराया। यदि मैं आपके घर पे आऊं और आपके घर के सर्वेंट पे ऑर्डर करूं, आप पसंद नहीं करोगे।
मैं आपके घर पे आऊँ, आपके बच्चे को करेक्ट करूँ, आप पसंद नहीं करोगे। भले आप मेरे मुंह पे नहीं बोलोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद ज़रूर बोलोगे उसको ऐसा नहीं करना था, वो होता कौन है। यदि हम अपने घर के सर्वेंट अपने बच्चे के लिए इतना सोचते हैं, आप सोचो परमेश्वर अपने दास के लिए कितना गंभीर होगा। जब हम परमेश्वर के दास का, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं। जरुब्बाबेल कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब आप हाग्गे की पुस्तक पढ़ोगे 2 अध्याय, परमेश्वर बोलता है, हे सालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल, देख मैंने तुझे अपने हाथ में अंगूठी के समान रखा है। जरुब्बाबेल का कार्य जब आप पढ़ोगे, बहुत लंबी चौड़ी उसकी सेवकाई का वर्णन नहीं है। उसने यरूशलेम का जो मंदिर जल गया था, उसका पुनर्निर्माण में सहयोग किया। इतना ही बस उसके विषय में लिखा है। और इज़राइल का उसको गवर्नर था। लेकिन चूंकि उसने एक काम किया, यदि प्रभु उसको बोल रहा है तू मेरे हाथ की अंगूठी है, आप बाइबल में पढ़िएगा, अंगूठी अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाता है। अंगूठी जो है अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाता है। वो दास चाहे कितना छोटा हो, कितना कम पढ़ा लिखा हो, यदि प्रभु ने उसका अभिषेक किया है, उसको नियुक्त किया है, आपको उसका आदर सम्मान करना पड़ेगा। आपको उसका आदर और सम्मान करना पड़ेगा। यूसुफ बंदी था, है ना, उस पर बहुत सारे आरोप लगे थे। पोतीपर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया, लेकिन एक समय आया जब फिरौन ने अपनी अंगूठी उतार करके उसे दिया ना, बोले आज के बाद केवल मेरी गद्दी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में तू प्रधान होगा। इतिहासकार बोलते हैं ऐसा कोई ताकत नहीं था जो यूसुफ के आदेश का उल्लंघन कर सके। यदि एक फिरौन का दिया हुआ अंगूठी एक व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बना सकता है, तो आप सोचो जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आँख की पुतली के समान है, मैंने तुझे अपने हाथ की अंगूठी के समान रखा है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया, वो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कितना कीमती और आदर के योग्य है। लेकिन आप और मैं अपने आप का इवैल्यूएट करें, हम प्रभु के दास का कैसा सम्मान करते हैं, हम प्रभु के दास का कैसा सम्मान करते हैं। आप इस चीज़ को मत देखिए वो व्यक्ति कौन है, आप इस चीज़ को देखिए इसको किसने अपॉइंट किया है, इसको किसने नियुक्त किया है। चौथा चीज, जब हम लोगों ने प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं, लिखा है पतरस और यूहन्ना दोपहर के 3रे पहर मंदिर में जा रहे थे आराधना करने, प्रार्थना करने। उस मंदिर के सुंदर नामक फाटक पे एक भिखारी बैठा था, और जब उसने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा, ये सारी घटनाएं आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है उसने कुछ पाने की आशा से पतरस और यूहन्ना के पास देखा। पतरस और यूहन्ना ने कहा भाई ना मेरे पास सोना है ना चांदी है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। मैं जो चीज़ एक विचार आपके सामने रखना मांग रहा हूँ, आप और मैं प्रभु की दास से क्या अपेक्षा करते हैं पाने की। क्या आप और मैं अपेक्षा के साथ आते हैं आज फलाना भाई अगुवाई करेगा, फलाना भाई वर्शिप लीड करेगा, लेट गॉड स्पीक टू मी। हम बोलते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मैं कल चैट जीपीटी में कुछ खोज रहा था, आप डालिएगा मूर्ति पूजा की परिभाषा, वहाँ लिखा है जरूरी नहीं है कि कोई आइडल हो, कोई नाम, कोई व्यक्ति भी जो आपके दिल को बहुत भाता है,
यदि वो भी प्रभु का जगह ले रहा है तो वो मूर्ति पूजा है, वो मूर्ति पूजा है। एक व्यक्ति जब आराधना कर रहा है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति जब आराधना कर रहा है, यू आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। आई एम सॉरी टू से। आप क्या देख रहे हो? आप व्यक्ति को देखने आए हो या परमेश्वर की आराधना करने? वो व्यक्ति पतरस और यूहन्ना को नहीं देख रहा था। वास्तव में यदि आप देखोगे, वो व्यक्ति इस बात को जान रहा था कि ये यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। और जब उसने इस बात को दिखाना, तब बाइबल बोलती है कि उसने पतरस और यूहन्ना की ओर कुछ पाने की आशा से देखा। और वास्तव में पतरस और यूहन्ना के पास जो था वो उन्होंने दिया। बोले यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, चल फिर। आप ये मत देखिए कौन अगुवाई कर रहा है, आप ये देखिए इस सेवकाई से मुझे क्या आशीष मिल सकती है। ये स्टोरी यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ, लेकिन लिखा है जब ये लंगड़ा उछलने कूदने लगा, अंदर आराधनालय में आग लग गया। आराधनालय में आग लग गया, अगुवे शास्त्री फरीसी सब भड़क गए। बोले ये कौन है? जिस यीशु मसीह को तुम नहीं जानते हो ना, उस यीशु मसीह को पतरस और यूहन्ना जानते हैं। शैतान बौखलाएगा जब प्रभु किसी को उठाएगा ना, शैतान बौखलाएगा। शैतान को बौखलाने दो, आप अपना काम करो। शैतान के बौखलाने से मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 5वीं चीज जो हम प्रभु के भवन में करते हैं, आप में से सब पढ़े हैं प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, हनन्याह सफीरा। इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, न पतरस ने बोला था, न याकूब ने बोला था, कोई चेले नहीं बोले थे कि भैया तुम अपनी भूमि बेचो और ला के प्रभु के घर में दो। यदि आपके बाइबल में कोई ऐसा लिखा होगा ना कि पतरस और यूहन्ना ने बोला उनको, तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी बाइबल को अच्छे से पढ़ूंगा। मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन ये काम को आरंभ किसने किया था मालूम है आपको? बरनबास ने, जो शांति का पुत्र कहलाता था। उसने अपनी भूमि बेचा और पतरस और यूहन्ना के चरणों में ला के डाल दिया और बोला इसको जैसे कलीसिया में जिसकी आवश्यकता है उसको बांट दो। अपन अक्सर बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो ये लोग बरनबास को कॉपी करने का प्रयास कर रहे थे। ये जब तक भूमि नहीं बेचे थे ना, तब भी उनकी थी, बेच दिए तब भी उनका था। लेकिन आप देखिए प्रभु के घर के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा जो आचरण है, हम बोलते ना वी लव गॉड्स हाउस, वी लव गॉड्स पीपल, वी वांट टू सर्व गॉड, वी वांट टू गिव गॉड। थैंक गॉड फॉर दैट, प्रभु का धन्यवाद हो उस चीज़ के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड बाइबल बोलती है ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने सलाह किए और बोले ठीक है इतना हम रखते हैं, और दोनों एक चीज़ पे भी सलाह किए। पूछेंगे ना इतने में बेचे? हाँ इतना में ही बेचे भैया, इससे ज़्यादा में नहीं बेचे हैं। अब मिस्टर हनन्याह आए ले करके भेंट, बोले प्रेरित जी ये हमने भूमि बेचा उसका कलीसिया के लिए। अच्छी बात है। पतरस बोला क्या इतने में बेचे? गौ अतका में बेचे हनगा, कसम अपन छत्तीसगढ़ में कसम खाते ना। बोले नहीं इतने में बेचे। बाइबल में लिखा है
वो गिरा और मर गया, गिरा और मर गया, समय भी नहीं लगा उसको। ये बात से उसकी पत्नी अनजान थी बेचारी, अच्छा मेकअप वेकअप करके अच्छा तैयार के अब मैं जाऊंगी, मेरा इंप्रेशन होगा वहाँ। मैं सोचता हूँ वो कैट वॉक रैम्प वॉक होता ना, उस वाले चाल से चल के आई होगी वो, मतलब कुछ दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ। वो आई, फिर पतरस पूछा क्या तुमने इतने में बेचा? बोले हाँ इतने में ही बेचा। आप ध्यान दीजिएगा, पतरस 2 बार उनसे बोलता है तुम दोनों ने इस बात को क्यों ठाना कि तुम परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलो। कई बार आप और मैं प्रभु के भवन में आते हैं ना, इस बात को हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते वहाँ उनके मध्य में रहता हूँ। हम लोग भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा भी इस जगह पर है। और बाइबल बताती है कि पतरस ने कहा देख तेरे पति को गाड़ने वाले अभी नगर के द्वार पर ही पहुँचे। तब भी मौका था, तब भी उसने नहीं बोली नहीं गलती हो गया, गलती हो गया। बाइबल बोलती है वो भी गिरी और मर गई, दफना दिए। कलीसिया वापस चलने लगा जैसा चल रहा था। ये घटना हमको क्या बात को सिखा रहा है? बाइबल बोलती है यदि तू अपने पाप को मान लेगा, यीशु मसीह का लहू तेरे सारे अधर्मों से धोने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जितना आसानी से एक बाहरी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, उतने आसानी से कई बार हम विश्वासी झूठ बोलते हैं। और इस बात का हमको रिग्रेट, खेद भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कई बार तो ऐसा होता है हम अपने पाप का ढीकरा किसी और के सर पे फोड़ते हैं। मैं थोड़ी वो है। It is better to accept your fault and mistake and leave it. अच्छी बात है, अपनी गलती को मान लो, छोड़ दो। God will give you grace. प्रभु आपको अनुग्रह देगा। यदि हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, let me ask you, where is the truth? सच्चाई कहाँ है? यदि हम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो आप और मैं ज्योति की संतान कहाँ हैं? कहाँ हैं आप और मैं ज्योति की संतान? यदि मैं गलती किया हूँ, आई विल एक्सेप्ट, हाँ मेरे से गलती हुआ है, मेरे से गलती हुआ है। इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। प्रभु आपको अनुग्रह देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? झूठ पे झूठ। और नहीं मैं थोड़ी किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। क्यों आप और अपने आप को गले में फांसी का फंदा डाल रहे हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरी हर एक बातों का, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, प्रभु उस दिन न्याय करेगा। प्रभु उस दिन न्याय करेगा। तो क्यों ना हम इस चीज़ को अपनाएं कि जब हम प्रभु के घर में आ रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है प्रभु के घर के लिए, प्रभु के घर के लिए। आपको मालूम जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, बाइबल में लिखा है, पहले दूसरा इतिहास 7 अध्याय को आप पढ़िएगा। जब 5वें अध्याय से पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक घटना वहाँ पर घटना है। दाऊद की इच्छा थी परमेश्वर के लिए भवन को बनाने का। दाऊद की इच्छा थी। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, दाऊद मैं तेरी इच्छा का कद्र करता हूँ, लेकिन एक बात को तू निश्चय जान ले कि मेरा भवन तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तू राजा होने के नाते बहुत सारे युद्ध को किया है, बहुत सारी गलतियाँ तुझसे हुई है। फिर भी मैं तेरे इस विचार का सम्मान करता हूँ, मेरा भवन तेरा पुत्र बनाएगा। अब तक का वाचा का संदूक इज़राइल में नहीं था, लेकिन जब सुलेमान ने मंदिर को बना दिया, इससे पहले कि वो उस मंदिर का अर्पण करे, लिखा है वो प्रभु की विधि के अनुसार
वाचा का संदूक को उस मंदिर के अंदर में लेकर के आया और जैसा परमेश्वर ने उसको आदेश दिया था सब कुछ वैसा किया। 5 चीज़ें जो वहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत बात को पाता हूँ। पहला चीज़, वे सारे लोग एक मन और एक चित्त थे कि प्रभु का जो वाचा का संदूक है वो वापस प्रभु के घर में आए। दूसरा चीज़, वे सारे लोग उस निर्देश का पालन करें जो प्रभु की वचन में था और सुलेमान ने उनको दिया था। तीसरा चीज, वे सारे लोगों ने अपना सबसे उत्तम बलिदान उस दिन परमेश्वर के लिए चढ़ाया। चौथा चीज, वे सारे लोग उस दिन प्रभु के सम्मान में वहां उपस्थित थे। और 5वीं और सबसे अच्छी बात, वे सारे लोग इन तमाम बातों के पश्चात अपने आप को प्रभु के सामने अर्पण करे थे। और बाइबल बताती है जब सुलेमान ने उस भवन का अर्पण किया, लेवी लोग आराधना करने लगे। बाइबल इस बात को बोलती है प्रभु की महिमा उस जगह पर उतरी और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वहाँ पर अपने पांव पर खड़ा रहा। मित्रों, आप और मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने की अपेक्षा कर रहे हैं। आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं बेदारी के लिए। आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं अपने शहर के लिए। प्रभु ये सारी चीज़ों को करेगा, सारी चीज़ों को करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। लेकिन उससे पहले वी हैव टू ऑनर गॉड्स हाउस, वी हैव टू ऑनर गॉड्स प्रेजेंस। जब तक आप और मैं प्रभु के घर का आदर, उसकी उपस्थिति का सम्मान नहीं करेंगे, मित्रों, परमेश्वर हमारे बीच में काम नहीं करेगा। आप 7वां अध्याय 2 इतिहास को अच्छे से पढ़िएगा घर जाकर के। आप इन बातों को पाओगे कि प्रभु वहाँ पर सर्वोच्च प्रभु था सारी बातों के ऊपर में। एक गीत को हम लोग गाते हैं, रेन इन मी सॉवरेन लॉर्ड, रेन इन मी। प्रभु तू मेरे जीवन पर कब्जा कर, तू मेरे दिल पर कब्जा कर, मेरे जीवन का संपूर्ण प्रभु तू हो। मित्रों, क्यों ना आज की सुबह जैसे हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे भवन का, तेरी उपस्थिति का सम्मान करूं। मित्रों, जिस दिन आप और मैं प्रभु के भवन और प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करेंगे, आप पाओगे प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में। आइए, क्यों ना कुछ क्षण हम अपने आंखों को बंद करें। Shall we examine ourselves this morning? आइए, क्यों ना आज की सुबह हम अपने आप को जांचें। The word of God has come to us. प्रभु का वचन हमारे पास में आया। God is no respecter of any person. परमेश्वर किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। He has showed you, man, what is good. उसने दिखाया है मनुष्य तेरे लिए क्या चीज भली है। And what does the Lord require of you? और प्रभु तुझसे किस बात की अपेक्षा करता है? To do justly, कि तू धार्मिकता से काम करे, love mercy, और प्रेम से प्रीति रखे, walk humbly with thy God. और अपने परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ चले। Check our lives, अपने जीवन को आज की सुबह हम जांचें, whether we are truly honoring God's house and God's presence. क्या वास्तव में हम परमेश्वर के भवन और उसकी उपस्थिति का सम्मान कर रहे हैं, Or we have just come here just to give our attendance into the house of God. या केवल हम परमेश्वर के घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ रहे हैं। If there is any other motive you come here for, यदि इसके अलावा कोई और भी आपके पास कारण है जिससे आप आ रहे हैं, repent before God. तो क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु के सामने क्षमा को मांगे Say, God, please forgive me. और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा I कर, don't want to make your house a house of merchandise. कि प्रभु मैं तेरे घर को व्यापार का केंद्र न बनाने पाऊं।
but then let your house be a house of prayer. परंतु प्रभु तेरा घर वास्तव में प्रार्थना का घर बन जाए. Reign in me, reign in me, reign in me, sovereign Lord, reign in me. Captivate my heart, let your kingdom come, establishing your throne.